students. Today we are going to start class 12th biology of Maharashtra State Board, chapter number 2, reproduction in lower and higher animals. It's given in your page number 18 of your textbooks. So what is reproduction? So reproduction is a biological process. What is reproduction? Reproduction is a biological process of formation of new life from pre-existing similar life. Formation of new life from pre-existing similar life. It means reproduction क्या है? Reproduction एक biological process है जिसमें नया life exist होता है from pre-existing similar life. Okay, so it is a vital process. This is a vital process. Okay, reproduction is a vital process which enables the species to survive for to survive for a long time. Okay, what it is? It is a biological process. This is the main word which you have to learn about reproduction. It forms a new life from pre-existing similar life. Okay, and it's a vital process जो enable करता है species to survive for a long time. It means that for a generation and generation. Okay? For a long period of time, even though the individuals or organisms live naturally for a limited period of time. Okay, for a limited period of time, and that is known as lifespan. What is it is known? This is known as lifespan. Okay, the limited period of time which it live naturally is known as lifespan. Okay, this word means lifespan. We will learn reproduction in animals, human reproductive system, gametogenesis, fertilization, early embryology, parturition, reproductive health. So slowly we will cover all the 7 points in this chapter. So let's start. What is reproduction? Reproduction is of 2 types. As we all know, we are familiar with all this. We have learned in early classes asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, reproduction is of 2 types. कितने टाइप के हैं? asexual है और sexual है. Asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है? Or we can say that define the asexual reproduction and sexual reproduction, or differentiate the asexual reproduction or sexual reproduction. The question may vary in different forms. You have to answer only this points. Okay, so reproduction 2 types है, asexual है, sexual है. Okay, first asexual, second sexual. Okay, asexual, in this formation of progeny is by single parent. Progeny means its daughter cells from the parent cells. Okay, the progeny means the generation the new life generation which has came, the naya baby form or anything you can say that has came is involved by the formation of only single parent involved hota hai. Okay, it does not involve both sexes. Means male and female nahi rehta hai isme dono. It does not involve both sexes. Okay, progeny or daughter cells जो मैंने पहले भी कह दिया था, प्रोजेनी और डॉटर सेल्स मतलब जो उसका न्यू लाइफ आया है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से जो नया लाइफ आया है, जो नया, लाइक इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी से अ न्यू बेबी is formed, that baby is formed is known. Okay, the progeny or daughter cells are genetically identical to the single parent. Means the progeny जो नया लाइफ आया है, जो न्यू लाइफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है पेरेंट सेल से, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है फ्रॉम सिंगल पेरेंट एंड आर ऑल्सो रेफर टू एज क्लोन्स. ओके,
The genetically and morphologically identical to the single parent are known as clones. मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल जो सिमिलर होता है डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल, उसे कहा जाता है क्लोन्स. ओके, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दो पेरेंट सेल्स है, तो उसे क्या कहोगे? क्लोन्स कहेंगे. नाउ इट इज कॉमन मेथड अमंग लोअर ऑर्गेनिज्म. In which organism it is common? It is common in lower organism, not in higher organism. It is very common method in lower organism. Like for example, I have given gemmules in sponges, which is been mentioned in your textbook. जो तुम्हारा textbook में दो examples दिए हैं वो है gemmules in sponges. Second is birding in hydra. Birding in hydra. Okay. Here the spaces are not there. यहाँ spaces नहीं था तो मैंने example यहाँ ऊपर लिख दिया. Okay. First example है gemmules in sponges. Second है birding in hydra. This we will learn in deep, means not in very deep, मतलब थोड़ा सा information दिया है gemmule formation in your textbook and birding in your textbook. As हमने birding पढ़ा था 9th standard में भी, तो थोड़ा बहुत उसका recap ले लेंगे. कॉमन मेथड क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म में है जेम्यूल स्पॉन्जेस. एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ क्या है. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो सेक्सेस नहीं इन्वॉल्व है इसमें. जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है सिंगल पेरेंट से और उसे कहा जाता है क्लोन्स. ये कॉमन मेथड है लोअर ऑर्गेनिज्म में. जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस एग्जाम्पल है, बर्डिंग इन हाइड्रा एग्जाम्पल है. दो एग्जाम्पल दे चुके हैं और ये दोनों के बारे में टेक्स्ट बुक में मेंशन भी किया है. ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 18 में तुम्हें मिल जाएगा इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, पेज नंबर 18 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग. यहाँ क्या था? प्रोजीनी था, यहाँ ऑफस्प्रिंग. ओके, दिस बोथ वर्ड्स मीन सेम ओनली, मीन्स दे आर अपकमिंग बेबीज by the formation of fusion of gametes. By the formation of fusion of gametes. It involves the fusion of gametes. Okay, what it involves? It involves the fusion of gametes. So here it was given that both sexes are not involved, but in this both sexes are involved. Okay, in this both sexes are involved. Also called as amphimixes. Okay, the sexual reproduction which produce offspring by production of fusion of gametes. इसका मतलब ये sexual reproduction ऐसा process है जिसमें offspring जो आ रहा है fusion of gametes formation, उसको हम amphifixes भी कहते हैं. ठीक है, इस process को. ये इन्वॉल्व करता है कितने पेरेंट्स? टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए. गैमेट्स फॉर्म होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, जाइगोट फॉर्म होता है. गैमेट्स फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन भी टेक प्लेस होता है. मियोसिस ऑल्सो टेक प्लेस हियर. न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड. इसमें नए कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं जो इवोल्यूशन के काम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, इट इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स और हायर एनिमल्स. ओके, this was found in lower organisms. Examples was gemmules in sponges, birding in hydra. Okay, two examples were given in your textbooks. It requires only single parent. It requires two parents. It has both sexes. It doesn't have both sexes like male and female. It has both sexes. For fusion of gametes, it requires both sexes, male and female. Progeny or daughter cells are genetically and morphologically identical to similar parent. Here, zygote is formed. Fertilization also takes place. Gametes are also formed. Meiosis takes place. New characters are found in higher animals. Okay, this is the differentiate between asexual and sexual reproduction. So sexual reproducing animals. Now formation. First example asexual reproduction का gemule formation दिया गया था, तो हम gemule formation में पढ़ेंगे क्या होता है gemule formation. Gemule formation इसमें bird formation take place होता है sponges में. ठीक है, बर्ड कहाँ फॉर्म होता है? बर्ड फॉर्म्ड ओनली इन स्पॉन्जेस. asexually produced mass or aggregation of dormant cells archaeocytes capable of producing new organism. इसमें एक archaeocytes produced होता है
जो आर्कियोसाइट्स होता है वो उसको एक कैपेसिटी होता है कि प्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आर्कियोसाइट्स क्या है, आर्कियोसाइट्स कोटेड होते हैं बाय थिक रेसिस्टेंट लेयर, आर्कियोसाइट्स कोटेड होते हैं विथ थिक लेयर जो सिक्रीट करता है बाय एम्ब्रियोबाइसाइट्स, ओके। आर्कियोसाइट्स कोटेड होते हैं थिक रेजिस्टेंट लेयर से, ये थिक रेजिस्टेंट लेयर्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एम्ब्रियोबाइसाइट से, ओके। एम्ब्रियोबाइसाइट से आर्कियोसाइट्स को थिक लेयर मिलता है। जेम्यूल फॉर्म होता है टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, ये फॉर्म क्यों होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन क्यों होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए। तो अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है, जैसे लाइक वो अगर फॉर्म मतलब वाटर या किसी टेम्परेचर किसी चीज़ से उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं, अगर उसे वापस फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं ना, जैसे वाटर टेम्परेचर उसको जितना चाहिए उतना मिल जाता है, तो जेम्यूल्स क्या करता है, जेम्यूल्स हैच and develop into a new individual, okay, gemmules hatch and develop into a new individual, ठीक है। मतलब इसमें बर्ड फॉर्म होता है इन स्पॉन्जेस, बर्ड्स फॉर्म्ड इन स्पॉन्जेस, असेक्सुअली प्रोड्यूस मास और एग्रीगेशन ऑफ डोमेंट सेल्स, जो असेक्सुअली प्रोड्यूस होता है इसके अंदर कैसे होता है, सेल्स असेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, ऑफकोर्स सेक्सुअल तो प्रोड्यूस होने नहीं वाला क्योंकि ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। आर्कियोसाइट्स कैपेबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ आर्कियोसाइट्स क्या करता है, कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में। आर्कियोसाइट्स के इधर एक थिक लेयर रहेगा जो सिक्रीट होता है एम्ब्रियोबाइसाइटिस से, एम्ब्रियोबाइसाइटिस से ये लेयर थिक सिक्रीट होता है। जेम्यूल फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होगा ना उससे लड़ने के लिए जेम्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल गए इसको, अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल गए तो जेम्यूल क्या करेगा, हैच, जेम्यूल विल हैच एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब यही जेम्यूल हैच करेगा और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है जेम्यूल्स का, एग्जाम्पल हमें क्या दे के रखा है हमारे टेक्स्ट बुक में, स्पॉन्जिला दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है, स्पॉन्जिला। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जेम्यूल्स फॉर्मेशन, ओके। नाउ दिस इज अ शॉर्ट रफ डायग्राम, थोड़ा अच्छा नहीं है बट फिर भी मैंने रफ डायग्राम बना दिया है। ऊपर वाले को माइक्रोपाइल बोलते हैं, अभी ये मोनो एक्सेबन स्पाइकुल्स है, इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला साइड जो है इनर मेम्ब्रेन है, ओके, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये आर्कियोसाइट्स है, दिस ऑल आर आर्कियोसाइट्स, जो मैंने कहा तो थिक लेयर जो रेजिस्टेंट होता है एम्ब्रियोबाइसाइटिस, वो आर्कियोसाइट प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म, पहले डेफिनेशन में पढ़ा होगा हमने जेम्यूल के बारे में। और ये आउटर मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स यू कैन सी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये किसका फिगर है, तो जेम्यूल का फिगर है। ऑलवेज कीप इन माइंड बोर्ड्स में हमें हमेशा पेंसिल से ही लेबल करना चाहिए डायग्राम, और पेंसिल से ही डायग्राम बनाना चाहिए। तो वो पेन्स का इस्तेमाल ना रखें, आदत कभी डालें ना ये हैबिट कि पेन से हम डायग्राम्स बनाएं, ओके। तो स्पॉन्जिला हो गया एग्जाम्पल, ये जेम्यूल फॉर्मेशन के ऊपर हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था जेम्यूल फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था, ठीक है। और नेक्स्ट में हम बर्डिंग इन हाइड्रा पढ़ेंगे। बर्डिंग, बर्डिंग सिंपल मेथड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बर्डिंग, ओके। Birding occurs in favorable conditions. It occurs in favorable conditions. Simple method है ये। Variety of animals में इसके examples you can take this as an example only. Hydra है और corals में birding find out होता है। Some colonial ascendants में भी है, okay? इसमें भी बर्डिंग होता है। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स इन योर टेक्स्ट बुक, हाइड्रा, कोरल्स, एसिड्रेंस। हाइड्रा का हमने एक एग्जाम्पल लिया है और उसके डायग्राम के साथ टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये जो है ये नया बर्ड, मतलब एकदम छोटा सा बर्ड है, वो बर्ड डेवलप हुआ नहीं है, मतलब अभी बर्ड निकला है। अब इसमें क्या है, बर्ड डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे देख सकते हो तुम, थोड़ा सा बर्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब समझा। अब इसमें क्या है, फुल्ली मेच्योर बर्ड हो गया, अब इसमें और ज़्यादा बड़ा हो गया है बर्ड। इसमें बर्ड का थोड़ा सा निकला था, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें और ज़्यादा बड़ा हो गया और ये फुल्ली मेच्योर हो गया है। तो ये पहले क्या हुआ, बर्ड आया, फिर बर्ड डेवलप हुआ, फिर बर्ड मेच्योर हो गया। अब ये बर्ड पूरा एकदम यंग हाइड्रा सेपरेट हो गया है, ठीक है। ये बर्ड पूरा अलग हो गया है, अब ये बर्ड एक न्यू पेरेंट हो गया है, okay, this is a young hydra separates. It can now
अब ये प्रोड्यूस हो सकता है फर्दर, ये भी आगे एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, नया प्रोजिनी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम कहते हैं क्लोन्स, ओके, नया प्रोजिनी प्रोड्यूस कर सकता है ये बर्ड, ओके। सो पहले बर्ड हुआ, फिर डेवलपिंग बर्ड हुआ, फिर मैच्योर हो गया फुल्ली, फिर उसके बाद यंग हाइड्रा सेपरेट हो गया। तो बर्डिंग बहुत छोटा है, बर्डिंग में ये है कि ये सिंपल मेथड है, इसमें फेवरेबल कंडीशंस है, इसके दो एग्जाम्पल्स है, हाइड्रा और कोरल्स है, कुछ एस्केंड्रेंस में भी होते हैं। हाइड्रा में ये बर्ड है, इसको डेवलपिंग बर्ड बोलेंगे, इसे फुल्ली मैच्योर बर्ड हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स तुम्हें ऐसे दिखाया गया है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखते हैं और ऐसे कुछ छोटे से डायग्राम है, समझ गया। ये क्लियर हो गया, दो स्टेप्स हो गए हमारे। जिम्यूल्स एंड स्पॉन्ज पढ़ लिया, अब ये बर्डिंग इन हाइड्रा भी पढ़ लिया। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स शो 2 phases in their lifetime. How many phases? कितने phases है? 2 phases. First is Juvenile phase. Second is reproductive maturity phase. Okay. So first phase, juvenile phase, represent physical growth of phase starting from birth. मतलब physical growth phase starting from birth. Animals cannot reproduce sexually in this phase. Okay. In this phase, इस phase में animals cannot reproduce sexually. Animals cannot reproduce sexually in this phase. Animals cannot reproduce in this sexual phase. Okay. Sexually juvenile phase में animals reproduce नहीं कर सकते हैं. Reproductive maturity phase है. Next है हमारा phase है जो उसे कह रहे हैं हम reproductive maturity phase. Okay. Reproductive maturity phase. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी फेज तब प्लेस करता है जब फिजिकल ग्रोथ, जो जुवेनिल फेज है ना, जो फिजिकल ग्रोथ खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी फेज टेक प्लेस होता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। In this, animals can reproduce sexually. इसमें animals reproduce कर सकते हैं sexually इस phase में, okay? And those animals can reproduce sexually in this phase. Juvenile phase, animals cannot reproduce sexually in this phase, but in reproductive phase, animals can reproduce sexually in this phase, okay? You got it? It take place after physical growth is almost over. ये तब प्लेस लेता है जब फिजिकल ग्रोथ खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज प्लेस करता है। इसमें ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि एनिमल्स इसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली इन दिस फेज, ओके। नाउ वी स्टार्टेड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. How many events are there in sexual reproduction? So there are 3 events. 1, 2, 3. Pre-fertilization is the first event. Fertilization is the second event. Post-fertilization is the third event. Okay. So the first event is gametogenesis. First event is pre-fertilization. It includes gametogenesis and gamete transfer. Okay. The two takes place. Two subtopics are there in this. For pre-fertilization of gametogenesis and gamete transfer take place in this process, okay. And in fertilization, fusion of male and female gamete take place. It is the definition of fertilization also. हम सब जानते हैं fertilization का definition क्या होता है, fusion of male and female gamete. फिर तो fertilization में fusion of male and female gamete कैसे take place करेगा वो सब हम सीखेंगे. Post fertilization में क्या है, formation of zygote and embryogenesis. इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये पढ़ेंगे और एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रहा है ये पढ़ेंगे, ओके। तो 3 इवेंट्स देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्री फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट ट्रांसफर है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो। Sexual reproducing animals show various breeding patterns, okay. There are 2 types of breeding patterns. One is seasonal breeders, second is continuous breeders. ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग में ब्रीडिंग पैटर्न्स हैं जो मैं टेक्स्ट बुक में दिया है, वो है सीजनल ब्रीडिंग पैटर्न्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ओके। फर्स्ट सीजनल ब्रीडर्स में गोट, शीप और डोंकी एग्जाम्पल दिए हैं।
जो ब्रीड करता है सीजनली, ओके, विच ब्रीड सीजनली, इट ब्रीड सीजनली, एंड जो ब्रीड करता है ईयरली, मतलब फुल ईयर, पूरे साल तक ब्रीड कर सकता है कंटिन्यूस, देयर इसमें सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें एग्जाम्पल्स है ह्यूमंस एंड एप्स, ओके, humans and apes are examples of continuous breeders. They can breed throughout the year, and goat, sheep, donkey are seasonally breeders. Okay, दो टाइप के हो गए, सीजनल हो गए, कंटिन्यूस ब्रीडर हो गया. सीजनल ब्रीडर में गोट है, शीप है, डोंकी है. कंटिन्यूस ब्रीडर में ह्यूमन है, एप्स है, एग्जाम्पल्स है, और इसके डेफिनेशन है कि जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकता है और जो सीजनली ब्रीड कर सकता है. ओके, नाउ